بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر اب تک ہمارا چینل اسلامک کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا، آج رات بھی وہ بنا کھائے ہی سو گیا تھا، اور آج دن میں وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کو ریت رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا، لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ مانو جسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی اور دل میں القاء ہوا، یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو پھر طاقت جواب دی گئی، کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا اور عقل مند انسان تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کنپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، کیا جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کا تن ڈھانکوں گا۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے، اس کا کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا اس کو، اتنے سارے دینار ہیں اس میں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث، ارے کیسے آ رہے ہو، کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی۔ بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔
ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तिबरी ज़ेरे तालीम था। तिबरी कहते हैं कि मैंने एक खरासानी को यह ऐलान करते हुए सुना, ऐ हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार से भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करे अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मवाली में से था। कहने लगा, ऐ खरासान के रहने वाले, हमारे मुल्क पसमानदा हैं, हालात हमारे बहुत ज्यादा खराब हैं। शायद आपकी हमयानी किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप उसके लिए इनाम का ऐलान कर दीजिए ना, जिसे लेकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खरासानी ने पूछा, हाँ भाई, कितना इनाम? अबू गयास ने कहा, 100 दिनार, यानी 10वां हिस्सा। उसने कहा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तिबरी कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो हमयानी जरूर इसी बूढ़े को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ, लबाबा कहाँ है? लबाबा ने कहा, हाजिर हूँ अबू गयास। बूढ़े ने कहा, मैंने एक शख्स को उसकी हमयानी की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तू उसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो इरादा है कि हम यानी उसको वापस कर देते हैं। लबाबा ने कहा, अबू गयास, हमें तेरे साथ 50 साल फक्र फाका में गुजारने पड़े। तेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं, एक सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान इस अमर से बुलंद है कि ऐसे आदमी को अजाब करे जो उनका वाहिद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है, ना कहीं डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तो उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे उन औरतों के मुताल्लिक सवाल न करेगा? तिबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा। मालूम हुआ कि उसका दिल उन भूखी नंगी बेटियों और मिस्कीन उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था। वो दीमक खोदा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांसें ले रही थी। उसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगे कब्र में लटकी हुई हैं तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे अहल वयाल पर रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं कि उसके बाद मियाँ बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए चंद टुकड़ों पे अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोग अनवाउ अक़साम के उम्दा उम्दा खानों से मजे ले रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि रमजानुल मुबारक, जो कि कुर्बानी और सखावत का महीना है, अल्लाह ने भूखा प्यासा रखने के लिए रोजे फर्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के जरिए महसूस करें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह की बेपाया एहसान याद करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भरकर मस्त हो जाते हैं, उनके हमसाये भूख से सीधे खड़े भी न हो सके, तो ऐसे लोगों का ईमान कैसा, ऐसे लोगों का रोजा कैसा? बूढ़ा बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कुढ़ता रहा। फिर कहता, अल्लाह ताला ही नेकी का इल्हाम करने वाला और रोजी तकसीम करने वाला है। उसने आज रात भी भूखे गुजार दिया और खजूरें और रोटी के चंद टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खरासानी हरब में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली हमयानी वापस कर दे तो अल्लाह उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज करने लगा, ऐ नौजवान, मैं तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया है, वसाइल जिंदगी कम है, शायद वो हमयानी किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार न सही, 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज नहीं, बल्कि मेरा और हमयानी का मामला अल्लाह की सुपुर्द है। उसके बाद दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खरासानी नौजवान फिर हरम में वही सदा लगा रहा था और वही बूढ़ा खड़ा हुआ और कहने लगा, है नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया, तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे, शायद कोई हमयानी उठा लाने वाला इस दिनार के लालच में वापस कर दे। खरासानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं कज़िये का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट चुका था और सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा न सही तो 1 दिनार ही रख लूं कि भूखे नंगे बेटियों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा फिर से मोजज़न हुआ और क़यामत के दिन के ख्याल से डर गया। सोचा
50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू ग़यास ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी हमयानी ले जाओ। तिबरी कहते हैं कि मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। शेख ने अंदर जाकर महफूज जगह से हमयानी निकाली और नौजवान से कहा, क्या तेरी हमयानी यही है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने हमयानी का सर खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। लबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देख की तरफ देखता है। खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़कर चल दिया। लबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की बातें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग उससे रूगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात न थी, क्योंकि उसने उनके भूखे नंगे मिस्कीनों को देख 1 दिनार तक न दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनांचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज्यादा गरीब न पाया। लो ये दिनार रख लो, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो नौजवान हमयानी रखकर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था। मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से सुना कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस न लौटाओ, अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। अब हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं, तो मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं कि मैं उसके साथ चलने लगा तो बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा, तू बड़ा मुबारक है। मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। मेरी कमीज देख रहे हो, इसमें क़याम लैल करता हूँ, फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियां और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सके। मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौट जाता हूँ। जब हम घर पहुंचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, लबाबा और फला फला। उस बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गई। उसने उन सब को दायरे में बैठाकर मुझे बाएं जानिब बिठा लिया और सबसे कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चुनांचे मैंने कमीज का दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीज फटी हुई थी। वो 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता, 10वां दिनार मुझे देता, यहाँ तक कि हमयानी खाली हो गई और हम सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो उस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा, लबाबा देख लिया तूने सब्र करने का फायदा। अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के जरिए से 1000 दिनार अता कर दिए। ये बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं किसी फकीर रोजेदार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तिबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफा दिया, उनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद मक्का आया तो मालूम हुआ कि वो लड़कियां शहजादों से ब्याह दी गई हैं और शेख चंद माह बाद फौत हो गया। मैं उसकी बेटियों के शौहर के पास जाता, उनके बच्चों से मिलता और सबको वो हमयानी वाला किस्सा तफसील के साथ सुनाता। वो ये किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनते, मेरी बड़ी इज्जत करते। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर रहम फरमाए।